Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, we have completed chapter 4 Nouns, Common and Proper of our English language book cornerstone in our last video. And students, today we are going to start our new chapter of our English language book cornerstone. And the number of this new chapter is chapter 5. And the name of this chapter 5 is One and Many. Okay, so students, today we will read chapter 5 One and Many of our English language book cornerstone in our today's class. And included in chapter 5 we will read about number, about singular noun and plural noun, and we will also read and solve exercise O, color the things that are only one in number, and we will also read and solve exercise M. Now circle the groups of words that describe these pictures, which is page number 21, and we will read and solve exercise A, add as to these words to change them from singular to plural, which is page number 22 of this chapter 5 in your English language book cornerstone in our today's class. Okay, so students, today we will read chapter 5 One and Many, and we will read and solve exercise O, M and A of this chapter 5 in your English language book cornerstone in our today's class. Okay, so all students pay partial attention class and listen to my words clearly, and let's see chapter 5. Okay, all students look at this page number 21. Let's see chapter 5. Your chapter number is chapter 5 and the name of this chapter 5 is One and Many. वन मीन्स एक, एंड मीन्स ऑल, मैनी मीन्स स्टूडेंट्स होता है अनेक या कई या बहुत सारे. ओके, वन एंड मैनी इट्स मीन एक और अनेक, या एक और कई, या एक और बहुत सारे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वन मीन्स होता है एक, जैसे वन चॉकलेट. मैनी मीन्स होता है मोर देन वन, एक से अधिक होना, जैसे टू चॉकलेट, थ्री चॉकलेट या फोर चॉकलेट के लिए मैनी का यूज़ कर सकते हैं. अगर टू चॉकलेट है या थ्री चॉकलेट या फोर चॉकलेट तो हम बोल सकते हैं मैनी चॉकलेट. क्लियर? So students, today's our topic is one and many. It's mean एक और अनेक. Okay, let's see exercise O. Your exercise O is color the things that are only one in number. Color means रंग, the things means वस्तुओं, that means जो, are means है, only means केवल, one means एक, in means में, number means संख्या. Color the things that are only one in number. It's mean कि उन चीज़ों में रंग भरे जो संख्या में केवल एक है. ओके, हमें उन थिंग्स पे कलर करना है, उन चीज़ों पे कलर करना है जो सिर्फ ओनली वन है. ओके, सिर्फ एक है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी pictures. Students, we can see that here a picture of a apple. Okay, of an apple. एक apple का picture है. Okay, and we can see this is only one. Okay, ये सिर्फ एक है. Okay, it's an apple. ये एक apple है. Okay, so students, this is one in number. ये नंबर में कितना है? वन है, संख्या में एक है. Okay, so students, filled color. Okay, fill color in this first number picture of apple. Okay, एप्पल का जो आपका फर्स्ट नंबर पिक्चर है एप्पल का, इस पर कलर फिल करिए. ओके, बिकॉज दिस एप्पल इज़ ओनली वन इन नंबर. ये जो एप्पल है ये नंबर में सिर्फ वन है, एक है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फिल करिए इस एप्पल पे कलर. ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर पिक्चर. वी कैन सी स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर पिक्चर देर आर फोर स्टार्स. ओके, यहाँ पे फोर स्टार्स हैं. ओके, चार तारे हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ओनली उन थिंग्स पे कलर करना है जो ओनली वन नंबर पे हो. ओके, इट्स मीन कि जो सिर्फ एक संख्या में हो. ओके, जो सिर्फ एक हो. क्लियर? मोर देन वन नाउ, इट्स मीन दो नाउ, थ्री नाउ. ओके, फोर नाउ. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, स्टार चूँकि फोर है. ओके, सो लीव इट. ओके, बिकॉज वी कांट फिल कलर इन दीज स्टार बिकॉज ऑल दीज आर फोर इन नंबर, क्योंकि ये संख्या में चार है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लीव इट. लेट्स सी थर्ड नंबर पिक्चर. ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर पिक्चर, दिस पिक्चर ऑफ बैलून्स का पिक्चर है. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट here are two balloons. Okay, and these balloons are टू इन नंबर. ये संख्या में कितने? टू है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लीव इट. ओके, बिकॉज वी कांट फिल कलर इन दिस बैलून्स बिकॉज दिस बैलून्स आर टू इन नंबर, क्योंकि संख्या में दो है. ओके, और हमें स्टूडेंट्स सिर्फ उन थिंग्स पे कलर करना है जो ओनली वन हो नंबर में. क्लियर? सो लीव इट. एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी फोर नंबर पिक्चर. वी कैन सी हियर अ पिक्चर ऑफ अ डॉग. एक डॉग का पिक्चर है, एंड वी कैन सी दैट दिस डॉग इज़ वन इन नंबर. ये संख्या में कितना है? वन है. ओके, ओनली वन है ना. तो स्टूडेंट्स, फिल कलर इन दिस डॉग बिकॉज दिस डॉग इज़ वन इन नंबर, क्योंकि ये संख्या में एक है. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी कैन सी all these pictures. Okay, we can see in all these picture that here are only two things that are one in number. Okay, first है एप्पल एंड सेकेंड है डॉग. ओके, यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स दी हैं, एप्पल का, स्टार का, बैलून का, डॉग का, उन सारी पिक्चर्स में सिर्फ टू थिंग्स ऐसी है, दो चीज़ें ऐसी है जो नंबर में वन है, जो सिर्फ एक है. ओके, फर्स्ट है आपका एप्पल. ओके, बिकॉज एप्पल इज़ वन इन नंबर. ओके, एंड डॉग इज़ आल्सो वन इन नंबर. क्लियर? तो हमने एप्पल और डॉग पे कलर फिल किया हुआ है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फिल कलर both pictures, apple and dog. Clear? So student, we have completed this exercise O. Okay, and I hope you must have understood this exercise O. Okay, you have no problem in this exercise O. Okay, so student, let's see exercise M. Your exercise M is now circle the groups of words that describe these pictures. Okay,
नाउन मीन्स अब, सर्कल मीन्स गोला, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के समूह, दैट मीन्स जो, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करते, दिस मीन्स इन, पिक्चर्स मीन्स चित्रों या तस्वीरों। ओके, नाउ सर्कल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब दिस पिक्चर, इट्स मीन कि अब उन शब्दों के समूह पर गोला करिए जो इन चित्रों को इन चित्रों के बारे में बताते हैं, इन चित्रों का वर्णन करते हैं। ओके, अब इन चित्रों का वर्णन करने वाले शब्दों के समूह पर गोला बनाइए। ओके, so student, let's see first number group of words. Your first number group of words are many apples oblique one apple. Okay, many apples it's mean अनेक सेब. Okay, more than one apple, एक से ज़्यादा सेब, कई सेब. Okay, तो many apples means अनेक सेब. Okay, and oblique means अथवा, one apple means एक सेब. Clear? So students, we can see in this picture that here only one apple. Okay, सिर्फ एक सेब है ना. So student, the correct group of word is second number group of word. Okay, so students, draw circle अराउंड दिस सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड, वन एप्पल. क्लियर? तो वन एप्पल जो हमारा सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का जो हमारा सेकेंड नंबर वाला हमारा जो शब्दों का समूह है वन एप्पल, उस पर सर्कल करिए. ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फोर स्टार्स ऑब्लिक वन स्टार. फोर स्टार्स मीन्स चार सितारे, ऑब्लिक मीन्स अथवा, वन मीन्स वन स्टार्स इट्स मीन एक तारा. ओके, वन मीन्स एक, स्टार मीन्स तारा. ओके, तो स्टूडेंट वी कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आर फोर स्टार्स. ओके, तो यहाँ पे फोर स्टार्स है ना, चार तारे ना. तो स्टूडेंट your first number group of words is the correct group of words. Okay, so student, draw circle around this first number group of words because here are four stars, not only one star. Clear? तो four star पे circle कर लीजिए. Let's see third number group of words. Your third number group of words are two balloons oblique one balloon. Okay, two balloons it's mean दो गुब्बारे, oblique means अथवा ये या. Okay, one balloon means एक गुब्बारा. Okay, so student, we can see in this picture that here are two balloons, not only one balloon. Okay, two balloons है ना. So student, the correct group of word is first number group of word. Okay, so students, draw circle around this first number group of word because there are two balloons, not only one balloon. Clear? So students, let's see four number group of words. Your four number group of words are many dogs, one dog. Okay, so students, many dogs it's mean कि अनेक कुत्ते, more than one dog. Okay, मैनी डॉग्स के इंक्लूडेड आपके टू डॉग हो सकते, थ्री डॉग हो सकते, फोर डॉग हो सकते. ओके, एंड आपका जब सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड है वन डॉग. ओके, वन डॉग मीन्स एक कुत्ता. ओके, तो मैनी डॉग्स इट्स मीन अनेक कुत्ते, और या वन डॉग मीन्स एक कुत्ता. ओके, सिस्टेंट वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हियर आर ओनली वन डॉग, सिर्फ एक डॉग है ना. सिस्टेंट द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड. ओके, सिस्टेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड वन डॉग बिकॉज here are only one dog. क्लियर? तो वन डॉग जो आपका सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड है उस पर सर्कल कर लीजिए. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, द वर्ड्स which describe these pictures are one apple, four stars, two balloons, and last one dog. Clear? So student, we have also read and solved exercise M of this chapter 5, and I hope you must have understood this exercise F. You have no problem in this exercise M. Okay, so students, now we are going to read and solve our next exercise. Okay, so all students, turn your page forward, look at the page number 22. Okay, firstly we are going to read about singular and plural noun. Okay, so students, let's see. We have learned that we can add as to show that there is more than one noun. For example, we say many apples and many stars. Okay, we means हम have it's a present perfect tense helping verb in plural form. learnt means याद कर चुके हैं या सीख चुके हैं. learnt it's a थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न. लर्न मीन्स याद करना या सीखना. लर्न मीन्स याद कर चुके हैं या सीख चुके हैं. दैट मीन्स कि वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, एड मीन्स जोड़, एस. ओके, टू सो मीन्स प्रदर्शित करने के लिए. दैट मीन्स कि देयर इज़ मोर देन वन नाउन, कि यहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन है, एक से ज़्यादा संख्या है. ओके, नाउन मीन्स संज्ञा. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव लर्न दैट वी कैन ऐड एस टू सो दैट देयर इज़ मोर देन वन नाउन. इट्स मीन कि हम सीख चुके हैं कि हम एस यह दिखाने के लिए जोड़ सकते हैं कि एक से अधिक संज्ञाएं हैं. ओके, हम सीख चुके हैं कि हम एस यह दिखाने के लिए जोड़ सकते हैं. हम एस को इसलिए जोड़ते हैं कि एक से अधिक संज्ञाएं हैं. क्लियर? तो हम एस को क्यों ऐड करते हैं? अगर हमें ये शो करना है कि मोर देन वन नाउन, एक से ज़्यादा नाउन है, तो हम एस को ऐड कर सकते हैं. ओके, और ये हम लर्न कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि हम एस ये दिखाने के लिए जोड़ सकते हैं कि एक से अधिक संज्ञाएं हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए वी से मैनी एप्पल्स एंड मैनी स्टार्स. ओके, हम मैनी एप्पल्स और मैनी स्टार्स बोलते हैं. ओके, इट्स मैनी, वी से मीन्स हम कहते हैं. ओके, हम कहते हैं. मैनी एप्पल्स मीन्स बहुत सारे सेब या कई सेब या अनेक सेब. मैनी मीन्स होते हैं अनेक या कई या बहुत सारे. ओके, एप्पल्स मीन्स सेब. मैनी एप्पल इट्स मीन कई सेब या अनेक सेब या बहुत सारे सेब. ओके, एंड मैनी स्टार्स मीन्स कई तारे, बहुत सारे तारे या अनेक तारे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हम अगर हमें बहुत सारी नाउन्स को हमें ये अगर शो करना है कि जो नाउन है, ओके, वो मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं?
वर्ड के एंड में एस को जोड़ सकते हैं और ये हम लर्न कर चुके हैं. क्लियर. व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ अ नेमिंग वर्ड इट इज़ सेड टू बी अ सिंगुलर नाउन. ओके, व्हेन में जब देयर इज ओनली वन, ओके, यहाँ पे सिर्फ एक हो, ओके, ऑफ अ नेमिंग वर्ड, ओके, एक नाम वाला शब्द, इट इज़ सेड टू बी अ सिंगुलर नाउन. तो इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं. ओके, एक वचन संज्ञा कहते हैं. ओके, तो व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ अ नेमिंग वर्ड इट इज़ सेड टू बी अ सिंगुलर नाउन. इट्स मीन कि जब एक संज्ञा जब अगर एक संज्ञा हो, ओके, जब नाम वाले शब्द में केवल एक ही नाम वाला शब्द हो, ओके, तो इसे हम एक वचन संज्ञा कहते हैं. जब नाम वाले शब्द में केवल एक ही नाम वाला शब्द हो तो इसे एक वचन संज्ञा कहते हैं. ओके, अगर कोई नेमिंग वर्ड है, ओके, जैसे चॉकलेट है, ओके, या डॉग है, या बुक है, या पेन है, ओके, तो अगर उसमें सिर्फ एक ही नेमिंग वर्ड हो, एक ही नाम वाला शब्द हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन बोलते हैं, एक वचन संज्ञा कहते हैं. ओके, जैसे चॉकलेट, डॉग, पेन, बुक, table. Clear. Let's see definition of plural noun. When a noun shows more than one it is said to be in the plural. Okay, when में जब a noun means एक संज्ञा shows means प्रदर्शित करता है, more than one means एक से अधिक. Okay, it is said to be in the plural. तो हम इसे plural बोल सकते हैं. plural means बहुवचन, या plural noun बोल सकते हैं, बहुवचन संज्ञा बोल सकते हैं. It's mean जब एक संज्ञा एक से अधिक संज्ञाओं को प्रदर्शित करती है तो उसे बहुवचन संज्ञा कहते हैं. ओके, इट्स मीन कि अगर कोई नेमिंग वर्ड है, एक कोई नाउन है और मोर देन वन नाउन को शो कर रहा है, ओके, एक से अधिक संज्ञाओं को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे हम प्लूरल बोल सकते हैं, बहुवचन बोल सकते हैं, या प्लूरल नाउन बोल सकते हैं, बहुवचन संज्ञा बोल सकते हैं. क्लियर. जैसे चॉकलेट्स हो गया, ओके, चॉकलेट्स नेमिंग वर्ड है लेकिन मोर देन वन नाउन को शो कर रहा है. क्लियर. एंड टेबल्स हो गया, डॉग्स हो गया, बुक्स है, पेन्स है. क्लियर. सो स्टूडेंट्स की अगर कोई ऐसा वर्ड, ऐसा नेमिंग वर्ड जो ये शो करे कि ओनली वन नेमिंग वर्ड है, सिर्फ एक नाम वाला शब्द है, वो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, एक वचन संज्ञा होती है. ओके, जैसे चॉकलेट हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया. और अगर ऐसा नेमिंग वर्ड, ऐसा नाम वाला शब्द जो मोर देन वन नेमिंग वर्ड को शो करे, एक से अधिक नाम वाले शब्दों को प्रदर्शित करे, तो वो हमारे होते हैं प्लूरल या प्लूरल नाउन, वो हमारी बहुवचन या बहुवचन संज्ञा होती है. ओके, जैसे चॉकलेट्स, ओके, चॉकलेट्स के इंक्लूडेड आपकी 2 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है, या 4 चॉकलेट है, तो उससे हम बोलेंगे प्लूरल बोलेंगे. ओके, बहुवचन बोलेंगे. जैसे डॉग्स. क्लियर. टेबल्स, पेन्स, बुक्स. क्लियर. So students, we have read about singular and plural noun, and I hope you must have understood definition of singular plural noun. You have no problem in this topic, singular and plural noun. Okay, now we are going to read and solve exercise A of this chapter 5. Okay, so all students, let's exercise A. Your exercise is add as to these words to change them from singular to plural. Okay, add means जोड़िए, as to these words इन शब्दों में, to change means बदलने के लिए, them means उन्हें, from means से, singular means एक वचन, to plural means plural में, बहुवचन में. Okay, add as to these words to change them from singular to plural. It's mean कि इन शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए एस जोड़िए. ओके, सो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, जो भी हमें वर्ड्स दिए हैं उनमें हमको ऐड क्या करना है, एस को ऐड करना है, और एस को ऐड करके हम क्या करेंगे, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लेंगे, एक वचन से बहुवचन बना लेंगे. क्लियर. ओनली वन थिंग दी हुई है और हम एस को ऐड करके मोर देन वन थिंग बना लेंगे. ओके, एक से ज़्यादा चीज़ें बना लेंगे. क्लियर. सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर वर्ड. योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज फ्लावर. FLOWER. फ्लावर मीन्स फूल. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐड एस in the end of this given word flower, and then your word become flowers. FLOWERS. flowers means फूल. okay, तो फ्लावर इट्स ओनली वन, इट्स अ सिंगुलर. ओके, ये सिंगुलर है, एक वचन संज्ञा. एंड स्टूडेंट, फ्लावर्स इट्स मैनी फ्लावर. ओके, एक से अधिक फ्लावर है. एंड इट्स अ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, आपका बहुवचन है. ओके, सो स्टूडेंट, वी हैव चेंज सिंगुलर टू प्लूरल नाउन. ओके, ऑफ दिस वर्ड फ्लावर, ये जो वर्ड है फ्लावर, इसको हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर चुके हैं. क्लियर. So students, write down here flowers. Okay, in this first number blank. FLOWERS. flowers means food. Okay, let's see second number word. Your second number word is toy. TOY. toy means खिलौना. It's a ओनली वन टॉय. ओके, सिर्फ एक टॉय है एंड इट्स अ सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा. ओके, स्टूडेंट, ऐड एस इन द एंड ऑफ दिस गिवन वर्ड टॉय टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. ओके, एंड स्टूडेंट, देन योर वर्ड बिकम टॉयज व्हेन वी have add as in the given in the end of this given word toy. Okay, to students, then our word become toys. 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 toys means खिलौने. Okay, toy it's our singular word. Okay, singular noun है, एक वचन संज्ञा. and toys it's plural noun. Okay, बहुवचन संज्ञा है. clear. let's see third number word. Your third number word is pineapple. PINEAPPLE. pineapple means ananas. Okay, it's a वन इन नंबर. ओके, इट्स अ सिंगुलर नाउन, ये नंबर में वन है और ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा. एंड स्टूडेंट, so all students, add as in the end of the given word pineapple, and then your word become pineapples. PINEAPPLES. pineapples means ananas.
इट्स आर मोर देन वन इन नंबर. ओके, ये संख्या में एक से अधिक है. ओके, पाइन एप्पल इट्स योर सिंगुलर वर्ड, इट्स अ सिंगुलर नाउन. ओके, आपका जो पाइन एप्पल था फर्स्ट वर्ड, ये आपका सिंगुलर वर्ड है. और पाइन एप्पल्स इट्स योर प्लूरल वर्ड, इट्स योर प्लूरल नाउन, ये आपका बहुवचन संज्ञा है. क्लियर? लेट्स सी 4 नंबर वर्ड. योर 4 नंबर वर्ड इज डोर, DOOR. डोर मीन्स दरवाजा. इट्स अ वन इन नंबर. ओके, ये नंबर में कितना है? 1 है. इट्स अ सिंगुलर नाउन, ये एक वचन संज्ञा. एंड सो ऑल स्टूडेंट्स add as in the end of this given word door, and then your word become doors. DOOR is doors. Doors means दरवाजे. एंड स्टूडेंट डोर इट्स वन इन नंबर, ये संख्या में एक है. इट्स अ सिंगुलर वर्ड. एंड डोर्स इट्स मोर देन वन इन नंबर एंड इट्स अ प्लूरल नाउन, ये बहुवचन संज्ञा है. ओके, लेट्स सी 5 नंबर वर्ड. योर 5 नंबर वर्ड इज बॉय, BOY. बॉय मीन्स लड़का. इट्स वन इन नंबर, इट्स अ सिंगुलर नाउन, ये नंबर में 1 है, ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संख्या. So all is add as in the end of this given word boy, and then your word become boys. Okay, boys means लड़के. Okay, and it's more than one in number and it's a plural noun, ये plural noun है, बहुवचन संज्ञा. Okay, and students let's say 6 number word. Your 6 number word is house, HOUSE. house. House means घर. It's a one in number and it's a singular noun, ये नंबर में 1 है और singular noun है, एक वचन संख्या. So all students add as in the end of this given word house, and then your word become houses, HOUSES. houses means घर, more than one house. Okay, and it's a more than one in number and it's a plural noun, ये plural noun है, बहुवचन संज्ञा है. Let's see 7 number word. Your 7 number word is book. book means किताब. it's 1 in number and it's a singular noun, ये singular noun है, एक वचन संख्या. and students add as in the end of this given word book, and then your word become books. Okay, books means BOOKS. books means किताबें. Okay, and it's a more than one in number, it's a plural noun है, बहुवचन संख्या. Let's see 8 number word, which is last word of this exercise A. Okay, so look clearly. Your 8 number word is table, TABLE. table, it's been made, it's 1 in number, नंबर में 1 है. ओके, संज्ञा में 1 है और इट्स अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा. एंड स्टूडेंट्स एड एस इन द एंड ऑफ दिस गिवन वर्ड टेबल टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, एंड देन योर वर्ड बिकम टेबल्स. TABLE is table. tables means मेजे एंड इट्स मोर देन 1 इन नंबर एंड इट्स अ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा और संज्ञा में 1 से अधिक है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स योर प्लूरल nouns are flowers, toys, pineapples, doors, boys, houses, books, and last tables. Okay, so student, we have read and solved exercise A of this chapter 5, and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in any word of this exercise A. Okay, so student, we have finished our today's topic, and I hope you have no problem in our today's topic. Okay, so students, today's classwork is that complete exercise O and M of this chapter 5, which is page number 21 in your English language book cornerstone. And after students, complete exercise A also, which is page number 22 in your English language book cornerstone. It's a today's classwork. Okay, and students, your homework is that learn exercise M and exercise A of this chapter 5 from your English language book cornerstone. It's a today's homework. Okay, so student, आपका classwork है कि आपको exercise O और M जो आपकी पेज नंबर 21 पे, and exercise A जो आपकी पेज नंबर 22 पे है, आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बुक कॉन्स्टेंट पे कंप्लीट करनी है. ओके, इट्स अ टुडेज क्लास वर्क. एंड स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि आपको ऑन एक्सरसाइज एम एंड एक्सरसाइज ए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक कॉन्स्टेंट से लर्न करनी है. एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग वर्क बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन all these 3 exercise O, M and A. Okay, so I hope you have no problem for learning work. Clear? So all students, firstly complete your classwork, complete exercise O and M, which is page number 21, and complete exercise A, which is page number 22 of this chapter 5 in your English language book cornerstone, and send me your work here. Thank you.